रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप डे टू डे अच्छा एक्टिव रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप एसएसबी ओनली कॉन्फिडेंस मैटर्स। आई बिलीव यू हैव टू बी सेलेक्टेड, you do not have to only qualify the exam. For what really matters is the SSL test, which comprises this TAT, thematic perception test, in which you have to write down many stories. 12 stories are there, and in word association test, one word will be given by the. Kumar, today I am going to introduce Ankit Misra. He has qualified more than 5 government exam, and he is defense aspirant, and he has qualified FK 2 times and CDS 1 time, and also many exam qualified. So congratulations, Ankit. Thank you, Abhishek. And today we will talk to him, and we will learn many things from Ankit. So let's start. So Ankit, तुम EB बोर्ड के कैंडिडेट हो, मुझे तो पता है। और तुमने कब ये डिफेंस की तैयारी शुरू की एज इंजीनियर होते हुए? Okay, Abhishek. Then during this Corona time, I have ample amount of time in my home. I explored myself. So what I did and I also find that the defense this job will be a suitable job for me. So I started preparation for defense. Since my nana, who is from defense background, so he was my motivation. So I started preparation for defense since second year of my engineering college. Okay. So you get some inspiration from your nana, I think. Yes. Okay. So actually, I think for this aspect you have prefer only your self study, I think. Yes. तो जो तुमने सेल्फ स्टडी किया है उसमें क्या क्या मटेरियल कहाँ से यूज किया है, क्या प्लेटफॉर्म रहे हैं उसके? और जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उतना मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि कोचिंग जो होते हैं स्टूडेंट वो ज़्यादा थोड़ा फॉरवर्ड होता है। तो कैसे तुमने चीज़ें मेंटेन की, तुम्हें क्या परेशानियाँ हैं जो सेल्फ स्टडी के टाइम बताइए? हाँ अभिषेक, देन आई बिलीव इन स्मार्ट स्ट्रेटजी. First of all, I went through all the syllabus of this CDS, FCAT, and in maximum exams I found that mainly English, math and reasoning, these sections are coming throughout the year. So what I did, I started preparation of math from Gagan Pratap videos, which is available free of cost in YouTube. And for English, I started vigorously reading the newspaper reading. It helped me. And what I did, I started writing down the hard or difficult vocabs in my copy and memorize it in evening or morning time. And for the reasoning, because in FCAT paper, reasoning is a little bit tough than other papers, so I followed one video, SSB Crack, which is available in YouTube. And before going to the exam, I saw that video. It is hardly of 5 hours. So this is the thing, and I did it. Actually, as for the current affair, actually, as I feel that you, when we are going to attempt any UPSC exam like the CDS and FCAT, the syllabus and the question put up so very hard, I think. Yes. Without deep study, they cannot qualify them. So how you maintain English English syllabus, whatever, because as you belong from the UP board, so how you maintain other things? for English syllabus, as I said earlier, that I only read some I tend to read daily newspapers. And for vocab, I followed one book, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, एंड इसको मैंने रीड किया 3 times में, और इसलिए मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई. Okay. So would you like to share some moment of your interviews? I think you have attempted more than 3 times SSB of the FCAT CDS. So would you like to just give an overview? For SSB, only confidence matters, I believe. On first day, you will see you have to go through this screening test. On the second day, there is a psychological test which comprises this TAT, thematic perception test, in which you have to write down many stories. 12 stories are there. And in word association test, one word will be given by you have to write down the sentence regarding that word. And in situation reaction test, 30 minutes, it will be off for 30 minutes. And what you have to do, that you have to attempt in 30 minutes, and afterwards self description test. In this way, this psychological test over, and then coming ground task activity, where half group task, full group task, race, individual obstacle race, this will all the things happen, and interview happen, and then last day conference, and they declare the result. So the SSB process
of 5 days only. 5 days. Okay. So, what do you want to give message for the juniors or the next generation, those that are preparing for the same things for the defense? So, would like to include something for the juniors. I will say that please follow my strategy if they help you. Okay, and for current affairs, this is the major section. And for current affair, follow one book, this Lucian book. You will find that it is very thick book. Okay, and it is very thin book. Sorry, it is very thin book. तो आपको एक बार इसको रीडिंग करना है, एक बार न्यूज़पेपर इधर रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको एक बार और करिए। पर थर्ड टाइम में आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज हो चुकी हैं और यहीं से आप इसको मेमोराइज करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ज्योग्राफी के जो सेक्शंस हैं उसको आप अलग अलग वीडियो बनाइए और अपने नोट्स बनाइए, अलग अलग वीडियो देख कर उसके नोट्स बनाइए, वो आपको हेल्प करेगा। बस और करंट अफेयर के लिए एक मिश्रा जी टेक्निकल है हो गया, कुमार गौरव सर हो गए, इनको फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स लाउड है, अगर चाहे आप डेली उसको रीड कर सकते हैं। तो दिस थिंग आई फॉलो। अच्छा, और आपका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो गया और आपने कैट भी क्वालिफाई किया है और काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई, अभी आपका सीसीएल होने वाला जो सेकंड फेज होने वाली है। तो यूपी ट्रिपल एस पैट भी मैंने हाँ, जब हम कोई एक चीज़ की तैयारी करते हैं तो मुझे मैं फोकस करता हूँ उसी चीज़ पे। तो आपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो भी उसके पहले दिए हैं, तो कैसे आपने चीज़ सारी मेंटेन की उसका सिलेबस? सी अभिषेक, व्हाट देयर इज वन मूवी बाजीराव मस्तानी। इन बाजीराव इट सेड दैट अगर आप जड़ पे वार करेंगे तो पूरा का पूरा ट्री गिर जाएगा। तो मैंने देखा कि फाउंडेशन इन सारे पेपर का क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ हो गया और करंट अफेयर हो गया। तो मैंने कहा कि पहले मैं तैयार नहीं था, तो इतने सो दैट आई अपीयर्ड इन मैनी ऑफ एग्ज़ाम्स। और इसको जब मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, तो मैंने कहा सारे एग्ज़ाम डालते हैं, मुझे भले ही कहीं नहीं जाना है लेकिन ये मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने इसे किया। ओके। सो अंकित, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट कि आपने बीटेक मैकेनिकल ग्रेजुएट होते हुए कैसे सिलेबस को मेंटेन किया? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैकेनिकल ब्रांच है उसका बहुत वाइड कोर्स है और उसके पहले भी आपने डिफेंस और जो भी अपने एग्जाम निकाले हैं उनका भी सिलेबस बहुत वाइड है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन की और आपने बढ़िया CGP भी मेंटेन करके रखी है, तो वो उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ताकि थोड़ा जूनियर्स और आने वाले जनरेशन को थोड़ा आइडिया मिले। See, I am not a topper of my college. I am just average student. What I believe, I am a regular student. So I daily go to my college. So whatever it is being taught by our teacher, I tend to write down in my notes. And when this paper come, I revised it, and it is very easy for me. So in this way, I am getting ample amount of time in preparation for defense. So I utilize all that time. So in this way, I managed both preparation as well as preparation of the college semester exams, and in both I did well. Okay. Would you like to share the score, whatever you get of the defense exams, like the FCAT, CDS and CAT also? FCAT में मेरा जैसे 2 पेपर होता है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो मेरा टेक्निकल हुआ था, EKD जिसे कहते हैं। तो मेरे नॉन टेक्निकल में 214 मार्क्स थे और टेक्निकल में मेरे सिर्फ 56 मार्क्स थे। और CDS में however the CDS paper do not reveal their marks, but I cleared the CDS because of math only. I attempted 83 questions and after going I attempted 86 questions. And after giving the paper, I found that many of the students attempted hardly 40 questions. So और जब मैं घर में आया तो मैंने मैच किया तो मेरे कम से कम काट पीट के तो मेरा 78 आ रहा था। तो उसी से मैंने अच्छा हुआ, 78 उसमें था। और इंग्लिश में मेरे 76 मार्क्स थे और मेरे करंट अफेयर्स में सिर्फ 46 थे। और मेनली करंट अफेयर्स बच्चे क्या करते हैं, वो सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। सी इफ दिस इज अ डिफेंस एग्ज़ाम, करंट अफेयर्स का वेटेज हालांकि ज़्यादा नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है। तो आप क्या करिए, आप ल्यूसेंट में ज़्यादातर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़ लीजिए और थोड़ा करंट अफेयर अच्छा कर लीजिए, जैसे मैंने कहा मिश्रा जी टेक्निकल से। और फिर आपके आपका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लीजिए, इससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम एग्जाम क्वालिफाई किए, मिनिमम कितने महीने की प्रिपरेशन होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एज इंजीनियर? आई थिंक 3 months प्रिपरेशन इज
more than enough if you are dedicatedly following the schedule. Okay, so what I want to give the last advice for the juniors because those are preparing for the defense exam, तो उनको कब से मतलब ये चीज़ अपना स्टार्ट करना चाहिए सेकेंड डे फर्स्ट डे? Yeah, this is a career. If you want to, you have to first explore yourself. What are the opportunities available for your career? So in second year, you should start thinking where you want to go. So मैंने भी यही किया और जूनियर्स को और कितने एस्पिरेंट्स को कहता हूँ अगर ग्रेजुएट हैं तो सेकेंड ईयर से आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए और अगर यू हैव टू बी सेलेक्टेड you do not have to only qualify the exam. For what really matters is the SSB. SSB is very very hard. So after giving this exam, start preparation for SSB. And SSB preparation start from the day one when you wanted to start preparing for the जितने को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं, जैसे आपके अगर हेजिटेशंस हैं तो आप मिरर प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश बोलिए अपने सामने, चाहे जितना मैटर हो कि नहीं बोल पा रहे लेकिन आप ट्राई करिए. मेनली ज़्यादातर हर्डल्स यही होती हैं. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ठीक है. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. आप डे टू डे अच्छा एक्टिव रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप SSB भी क्लियर करते हो. हम लोगों ने इनकी वजह से बहुत सारी बातें की और बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए और मुझे लगता है काफ़ी हम लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग जब डिफेंस के लिए प्रिपेयर करें तो किन चीज़ों को फॉलो करें और कई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली हैं. और खासकर जोड़ने से कहना चाहूँगा कि जो भी अंकित सर ने बताया थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए आप लोग. और यदि आप डिफेंस के एक्सपीरियंस हैं तो रियल में उस चीज़ को थोड़ा गहनता से लीजिए और गहराई से फॉलो कीजिए. मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ कि मेरी सीरीज में इंटरव्यू का सीरीज का थर्ड वीडियो है. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा. कीप वाचिंग वीडियो एंड स्टे मोटिवेटेड. थैंक्स टू अंकित मिश्रा मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका और काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करने में. काफ़ी एग्जाम को क्वालिफाई किया तो मैं क्या तुम शेयर करना चाहोगे कि करके थोड़ा उनके बारे में बताइए. जो भी अपने एग्जाम क्वालिफाई किया उनका स्कोर रहा, थोड़ा डीपली उनके बारे में थोड़ा बताइए. तो मुझे इतना याद नहीं है लेकिन इतना मैंने क्वालिफाई कर लिए. जैसे मैंने CDS दिया है, 2 बार FCAT दिया है और CHSL मैंने दिया है और UP ट्रिपल SC ये मैंने दिया है जिसका मेरा 99.67% रहा. और CDS में तो ऐसे मार्क्स रिवील नहीं हुए हैं और FCAT में मेरे 214 मार्क्स थे, CHSL में मेरे 82 मार्क्स थे. तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है और इक्विटेंस में आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर है. बस मुझे लगता है वो एग्जाम ज़्यादा महत्व नहीं लगता लेकिन फिर भी आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की सब एग्जाम दिया है.